Okay, recording is also started. ओके सो 28 स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके ओके सो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डन, वी हैव स्टार्टेड विद द protocol, that is multiple access protocol. We have seen the different categories, I think. That is different categories of the multiple access protocol, and we came to know that we have a random access protocol, we have controlled access protocol, and we have channelization protocol. Okay, so out of these protocols, these work different. Okay, all these protocols have a different way of working. The first one, that is a random access protocol. In this protocol, we have seen the Aloha. In Aloha, we were having pure Aloha and slotted Aloha. So that already we have seen, and we saw that there are large number of collisions which are happening in the pure and the slotted Aloha. But as compared to the pure Aloha, the slotted Aloha is quite good. We can't say quite good, but as compared to the pure Aloha, it gives more efficiency. Okay, so let us move ahead. So it was the pure Aloha. We saw the diagram that in that diagram we saw four stations were sending the messages or frames. Okay, each station tries to send two frames. Okay, and out of the two frames per station, and total four stations were there. So out of eight frames, only two frames were reached successfully, and all the frames were destroyed or collided. Okay, it was there in the pure Aloha. Then we came to the slotted Aloha, and we instruct all the station to send the frame at the beginning of the time slot. And what we have done, we have divided the whole time into number of slots. Okay, so we have divided the time into number of slots, and we will instruct all the station to send their frames at the beginning of the time slot only. Okay, if any station miss this chance, if any station misses this chance, then what will happen, the station will have to send the packet in the next time slot. Okay, so it was the scenario. So ये concept रखने के बाद में we got some less number of collision, तो कुछ collision कम हुए, and we got efficiency more as compared to the pure Aloha. Okay, so these two protocols are the random access protocol. And you know the concept of the random access protocol. According to the random access protocol, they are not having any time. कुछ बोलते हैं ना टाइम टेबल नहीं है क्या भाई, तो वैसे इनका कोई टाइम टेबल ही नहीं है. ओके, whenever a station has a frame to send, it will start transmitting that particular frame. Okay, it will not even see that if someone is using that particular shared medium. Okay, that channel is being used by any other station, so it will not even see that. Okay, it will start transmitting the message. Okay, तो भाई साहब फिर आगे सोचे. सो फिर सोचने के बाद में कुछ थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है, एंड वी केम टू नो एंड वी केम विद they came with the next protocol, and the next protocol is CSMA, that is carrier sense multiple access. Okay, so in this carrier sense multiple access, basically the carrier or the shared medium is going to be sensed first. Okay, so जो भी station, whoever station wants to transmit the message or wants to send the message, then it first has to sense the medium. Okay, पहले medium को sense करेगा, और सेंस करने के बाद में if the medium is free, then only the station is allowed to send or transmit the data or the frame or the signal on the shared medium. Okay, if the medium is not free, then what the station has to do, the station has to wait until the medium is free. Okay, so it was the basic theme or basic concept behind this CSMA. Okay, before starting with the CSMA actual. Okay, so let us see the persistent method. Okay, and now we'll also see what are these persistent method. ये मैंने दो slide बीच में add किया हूँ. Okay, and these are very good because we are going to access all the stations are when all the stations are going to access the medium. Just concentrate on this point. When all the station will try to access the shared medium. Okay, then what will happen, there is a chances of collision. We are just seeing from all those protocol. Okay, हमने pure Aloha देखा, slotted देखा. Okay,
So we came with some persistent method. Okay. So persistent method. What should a station do if the channel is busy? Okay. अगर चैनल बिजी है तो क्या करना चाहिए? What should a station do if the channel is idle? अगर चैनल फ्री है तो स्टेशन को क्या करना चाहिए? Okay. So these two method. Okay. These two questions. Okay. So these we have three different persistent method actually. The one is the sorry. The first is one persistent method. The second is non-persistent method, and that non-persistent method is also called as zero persistent method. Okay, and the third is p-persistent method. Okay, so to answer the above question, like what station should do if the channel is busy or if the channel is idle. Okay, तो या तो चैनल बिजी या तो आपका जो शेयर्ड मीडियम है, जो आपका जो चैनल है, या तो बिजी होगा या तो फ्री रहेगा. ओके, दोनों में से एक मतलब पॉसिबल है. ओके, सो दोनों कंडीशन में हमारे स्टेशन को क्या करना चाहिए, उसका आंसर करने के लिए वी हैव दीज थ्री परसिस्टेंट मेथड. ओके, बहुत सिंपल है. And these persistent method will help us in the CSMA. Okay, in CSMA CD and in CSMA CA. Okay, CSMA carrier sense multiple access, CSMA CD carrier sense multiple access with collision detection. Number 3, CSMA CA, that is carrier sense multiple access with collision avoidance. Okay. Okay, so first of all, we'll see what is this one persistent method, what is non-persistent or zero persistent method, and the third is p-persistent method. Okay, well, we'll try to understand with the help of diagram. Okay, as you know that in the CSMA, the basic theme behind the CSMA is that whenever a station has a data to send or transmit, then it cannot send, the station cannot send the data as it is. जैसे कि हमारे अलोहा में था. ओके, इसमें वही जो मर्जी आए तो भेज दो. ओके, एक्सक्यूज मी, just okay. Sorry for the inconvenience. Okay, so we were learning the persistent method. Okay, and these persistent method are required in the CSMA, that is the carrier sense multiple access. It means that whenever a station has a data to transmit, whenever a station, any station has a data to transmit, then like Aloha, that is in the pure Aloha and the slotted Aloha, they cannot transmit the data as it is. Okay, they first have, now in the CSMA they first have to sense the medium. थोड़ा मीडियम को उन लोग को अपना सेंस करना पड़ेगा, वेदर द मीडियम इज बिजी और फ्री. ओके, तो मीडियम आइडल है या मीडियम फ्री है, मीडियम आइडल है या मीडियम बिजी है. सो फर्स्ट दे हैव टू सेंस इट. ओके, if the medium is idle, then only they can start their transmission. If the medium is not idle, it means if the medium is busy and they have to wait. Okay, यहाँ पर हम लोग उठा के ऐसे भेज नहीं सकते. ओके, तो अब देखते हैं हमारे persistent method. हमारा जो first persistent method है, it is one persistent method. Your one persistent method says that uh, when you sense the medium, when the station will sense the medium, then it will continuously sense. Okay, so it will continuously sense the medium, as you can see in the diagram also. I'll just show the diagram. Okay, as you can see in the diagram that it is continuously sensing the medium. Sense kiya, sense kiya, sense kiya, sense. So it is continuously sensing the medium. Okay, and when the station will find a point when the
when the medium is free now, जिसका भी ट्रांसमिशन चल रहा था वो हो गया, okay, now the medium is free, now the medium is idle at this point, so it will start transmitting, so it is the one persistent method, okay. अब इसी के साथ साथ में हमारा है नॉन परसिस्टेंट मेथड, जिसको हम लोग जीरो परसिस्टेंट मेथड भी कहते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर जीरो persistent or non persistent method says, okay. Like your one persistent method, it will not sense the medium continuously. It is not going to sense the medium continuously for transmitting the data. It is not going to sense the medium continuously. It will sense the medium for once, okay. पहली बार मीडियम को सेंस किया, सेंस करने के बाद में कंटिन्यूसली नहीं करेगा, इट विल वेट फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, ओके। द अमाउंट इज बीन आपका डिसाइडेड बाय द मीडियम, ओके। तो कितना टाइम वेट करना है, द स्टेशन विल डिसाइड, इट्स अप टू द स्टेशन, so it will wait for the random amount of time, it will wait for the random amount of time, and after waiting for random amount of time it will come again and then again sense the medium, okay। सेंस किया, वापस से बिजी आया, कोई ऑलरेडी यूज कर रहा है, ओके, वापस से जाएगा, वापस से फिर एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, ठीक है, और फिर वेट करके वापस आएगा और फिर आके चेक करेगा, अगर मीडियम आइडल है तो स्टार्ट कर देगा, और अगर मीडियम बिजी है तो फिर चला जाएगा और फिर थोड़ी देर के बाद में आएगा, ओके। It means in zero persistent method your station is not going to wait for continue, okay, it is not going to sense the medium continuously, okay. It first come, then sense the medium, if the medium is idle then it will start the transmission, if the medium is busy then it will wait for random amount of time and then again it will sense the medium, as you can see in the screen। ये आया भाई साहब आपका फर्स्ट टाइम सेंस किया, एंड जब सेंस किया तो मीडियम आपको बिजी दिखा, ठीक है। देन एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम उसने वेट किया, वेट करने के बाद में अगेन इट कम्स एंड सेंस द मीडियम, देन अगेन मीडियम आपको बिजी मिला, बिजी मिलने के बाद में इट अगेन उसने वेट किया फॉर दिस अमाउंट ऑफ टाइम। अच्छा, यू कैन सी ओवर हियर, अच्छा थोड़ी देर वेट करने के बाद में ही यहाँ पर आपका जो है ना, तो मीडियम फ्री हो चुका था, बट लेकिन हमारे भाई ने तो ठान के रखा है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो भाई साहब आए बहुत देर के बाद में, ओके, बहुत देर के बाद में आए, और आए तो मालूम पड़ा कि मीडियम तो कब का फ्री हो चुका है, बट क्या करे, कोई इशू नहीं, तो यहाँ पर उसको मीडियम फ्री दिखा और यहाँ पर हमारे भाई साहब ने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया, ओके। अब अच्छा ये सोचो कि अगर इसके बाद में कोई और सेंस करता, देयर इज वन क्या बोलते हैं इसको, डिसएडवांटेज भी है कि अगर यहाँ पर कोई और उस टाइम पे कोई और सेंस करता, स्टेशन वन जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट वाज सेंसिंग द मीडियम एंड चला गया, चलो थोड़ी देर के बाद में आता हूँ, और उसी टाइम पे अगर आपका कोई स्टेशन नंबर 2 ने सेंस किया होता यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेंस किया होता तो उसको मीडियम आइडल दिखता, यानी मीडियम फ्री दिखता, और जब फ्री दिखता तो स्टेशन 2 तो ये अपॉर्चुनिटी छोड़ने वाला नहीं, तो स्टेशन 2 विल स्टार्ट द ट्रांसमिशन, ओके। और यहाँ पे फिर जब ट्रांसमिशन स्टार्ट करता तो मीडियम आपको वापस से बिजी हो जाता, और जब बिजी हो जाता तो फिर जब ये वापस से ट्रांसमिशन के लिए भाई साहब आते तो वापस से उसको फिर क्या दिखता, बिजी दिखता है ना। ये एक मतलब एक प्रोबेबिलिटी है, एक चांसेस है, ओके। so in one persistent method, see what is happening when the station is trying to send the data, and for that purpose it is sensing the medium, okay। when it sends the medium, तो अगर चैनल अगर बिजी है तो क्या करना चाहिए, और अगर चैनल फ्री है तो क्या करना चाहिए, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमको ये persistent मेथड से मिल जाएगा, ओके। so using these persistent method we can easily have the option what station has to do if the channel is free or the channel is busy, okay। so we have got about this one persistent and zero persistent or non persistent, okay। am I clear with it? I hope ये आपको समझा होगा, that is one persistent and zero persistent method, okay। so in one persistent method, your station is going to sense the medium continuously, okay, and when the station becomes free, it will get a chance, the station will get a chance, and then it will start its transmission. That happens in the one persistent. In the non-persistent, it will sense the medium. Then if the medium is busy, then it will wait for random amount of time, then comes again sense the medium. If the medium is free, then it will start the transmission. If the medium is busy, then it will again sense the medium after some amount of time. Okay, as you can see on the screen. Okay,
So ये हमारा one persistent, zero persistent. Okay. Come to the third one, that is P persistent. P stand for probability. Okay. Obviously this is the one persistent method. This is the zero persistent method. तो जो भी probability है आपकी वो 1 0 के बीच में यहाँ पर आ जाएंगे. Okay. ये basically your P persistent is the combination of your one persistent and zero persistent. Okay. So your P persistent is the combination of 0 and 1, यानी कि आपका 1 persistent and 0 persistent का combination है. Okay. So in P persistent, what they are going to do, according to the P persistent method, your station is going to continuously sense the medium, as in the as you have already seen the one persistent method. Okay. In one persistent method, our station was continuously sensing the medium. Okay. So as same as in the P persistent method, my station is going to continuously sense the medium. Okay. And when the station becomes free, as you can see over here, ये पॉइंट के ऊपर आपका जो है ना, कहाँ चला गया, ये पॉइंट पे आपका जो है ना स्टेशन हो गया फ्री. ओके. एट दिस पॉइंट योर मीडियम इज फ्री नाउ. ओके. तो यहाँ पर जो इसका बिजी जो शेड्यूल था वो खत्म हो गया, अब यहाँ से फ्री हो गया. बट व्हाट हैपेंस, यहाँ पर आपका स्टेशन सेंड नहीं करे अकॉर्डिंग टू द पी परसिस्टेंट मेथड. पी बोलता है भाई वेट करो थोड़ा सा. ठीक है. तो इट विल नॉट स्टार्ट इट्स ट्रांसमिशन. हालांकि मीडियम तो फ्री हो चुका है, अब यहाँ तो कुछ सोचने की बात ही नहीं. मीडियम फ्री मिला, ट्रांसमिशन स्टार्ट करो. बट आपका पी परसिस्टेंट मेथड थोड़ा सा आगे जाके ये सोचता है कि मैं सेंड नहीं करूँगा, मैं ट्रांसमिशन स्टार्ट नहीं करूँगा. व्हाट इट विल डू, it will again wait for some amount of time. Okay. Wait for time slot. Okay. थोड़ा सा एक टाइम स्लॉट का वेट करेगा और वेट करने के बाद में वापस से सेंस करेगा. ठीक है. अच्छा ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको उसका एक रीजन देता हूँ. ठीक है. फ्री स्लाइड मिले कोई, चलो यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ. सो पीछे जाके मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ तो अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे थोड़ा फ्री स्पेस में दिखाता हूँ. ओके. सो ये इसका रीज़न क्यों है, वेट करने का रीज़न क्यों है, देखो मैं आपको बताता हूँ. अभी फॉर एग्जांपल आपका स्टेशन है ए. ओके. ये आपका स्टेशन है बी. ओके. एंड वी हैव थर्ड स्टेशन दैट इज सी. ओके. we are having multiple station because this is the multiple stations are trying to share the same medium. Multiple access protocol, multiple station are trying to access this particular medium. तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ही वही है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल. ओके. सो वी हैव इमेजिन वी आर हैविंग 3 स्टेशन ए बी एंड सी. ओके. नाउ ये आपका मीडियम है, जो आपको जो ब्लू स्ट्रिप दिख रही है, दिस ब्लू स्ट्रिप इज योर मीडियम. ओके. नाउ at point t is equal to 1, that is t1 time, at time t1. Okay. Your a station think of transmitting the data. Okay. Then what it will do, it will sense the medium. इसने भाई साहब ने मीडियम को सेंस की. ओके. मीडियम सेंस करने के बाद में ए को पता चला कि मीडियम तो फ्री है, जो चैनल है वो तो फ्री है, इस पर तो कोई और ट्रांसमिट कर ही नहीं रहा है. ओके. और सेम टाइम पे, अच्छा सेंसिंग करना मतलब क्या है, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ. बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द वाइड नेटवर्क. ओके. वी आर वर्किंग ऑन द वाइड नेटवर्क. वी आर वर्किंग ऑन द वाइड नेटवर्क. सो हमारे ईथरनेट के अंदर जब हमारा स्टेशन मीडियम को सेंस करेगा तो अपनी लोकेशन पे सेंस करेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने घर में हैं. ओके. तो हम अगर अपने घर में हैं या नीचे कहीं है मतलब नीचे हमारी शॉप वगैरह, तो हम सामने बैठेंगे तो वी कैन सी दैट सम व्हीकल्स आर पासिंग फ्रॉम द रोड. ओके. सम कुछ गाड़ियाँ जा रही है. ओके. तो वी कैन ओनली सी फ्रॉम सिटिंग इनसाइड द शॉप, वी कैन ओनली सी दैट के द व्हीकल्स आर मूविंग फ्रॉम द रोड. ओके. तो मैं खाली सामने वाली व्हीकल को देख सकता हूँ. ओके. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने अपने गैराज से और अपने अपने अगर कभी पार्किंग से अगर मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ बाहर, सो आई विल सी सामने का हिस्सा, सामने का पार्ट आई कैन सी. एंड देन सामने कोई गाड़ी नहीं होंगी तो फिर मैं गाड़ी अपनी निकाल लूँगा बाहर, अगर कोई रहेंगी तो मैं नहीं निकालूंगा. दैट्स सिंपल कोरिलेशन वी कैन डू. अच्छा. पूरी स्ट्रीट के ऊपर कहीं और दूसरी गाड़ी है, कहीं और दूसरी आ रही है, तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा बिकॉज आई एम जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट माई होम. ओके. मैं अपने घर से जस्ट बाहर निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, तो जो दूर गाड़ी है तो उसको मैं सेंस नहीं कर पा रहा. ओके. यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है. आपका स्टेशन जो है ना ये सेंस करेगा इस पॉइंट के ऊपर, ये जो दिख रहा है पॉइंट, तो ये पॉइंट के ऊपर सेंस करेगा, थोड़ा सा आसपास में सेंस करेगा, तो देखेगा कोई सिग्नल पास नहीं हो रहा है. ओके.
जब सिग्नल पास नहीं हो रहा है तो ए क्या करेगा, आपका स्टेशन ए विल स्टार्ट द ट्रांसमिशन, योर ए स्टेशन ए विल स्टार्ट द ट्रांसमिशन। अब उसने क्या किया, ट्रांसमिशन स्टार्ट करना मतलब क्या, उसके पास जो डेटा है, उसके पास जो सिग्नल है, वो सिग्नल वो क्या करेगा, चैनल पे लोड करना शुरू कर देगा, बिट बाय बिट अपने 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 सिग्नल को चैनल पे लोड करना स्टार्ट करेगा। अभी चैनल पे इसने लोड करना स्टार्ट किया, ठीक है, अभी जा रहा है। अब उसी टाइम पे, अब जिस टाइम पे आपके ए भाई साहब ने सोचे, उसी टाइम पे सी भाई साहब भी सोच सकते हैं, बिकॉज यू नो वी हैव दिस shared medium, and we may have number of stations which are working in the shared medium. Okay, so at the same time your station C also thinks for transmitting the data। अब जब इसने भी सोच लिया भाई साहब ने, तो ये भी जब सेंस करेगा मीडियम को, तो ये भाई साहब ने मीडियम को सेंस किए तो आसपास में जब देखे भाई कोई गाड़ी नहीं आ रही यहाँ पर, कोई मतलब कि सिग्नल आ नहीं रहा है। अब ये जो सिग्नल है वो अभी ए के पास में ही है, ठीक है। सेम टाइम पे सी ने भी सोचा, at the same time C also start transmission, then it first sends the medium according to the CSMA, it first sends the medium and found that the medium is free, okay, because यहाँ पे तो कोई ट्रैफिक दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो देख लिया तो भाई सब फ्री है, तो इसने भी क्या कर दिया, अपना अपना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। दोनों ने CSMA फॉलो किए, दोनों ने फॉलो किए, दोनों ने CSA में फॉलो किए, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, मतलब पहले कैरियर को सेंस करो, उसके बाद में एक्सेस करो। ओके, सो ए स्टेशन एंड सी स्टेशन बोथ हैव सेंस द मीडियम फर्स्ट एंड दे फाउंड दैट द मीडियम इज फ्री। ओके, एंड उसके बाद में जब ट्रांसमिशन स्टार्ट किए तो एट दिस पॉइंट हो सकता है कि कोई दूसरे पॉइंट, इसमें इसका डेटा यहाँ तक आया, इसका डेटा यहाँ तक आया, ये पॉइंट पे हो गया आपका कोलिशन, दोनों के फ्रेम हो गए। ओके, सो ये चीज़ भी हो सकती है कि जिस टाइम पे मैंने ट्रांसमिशन का सोचा, उस टाइम पे सी वाले भाई साहब ने भी सोच लिया। तो इसके लिए हमारा जो प्री परसिस्टेंट मेथड है, ये थोड़ी सी केयर करता है। क्या केयर करता है कि मैंने सेंस किया, मुझे कोई नहीं, ठीक है, चलो मैंने सेंस किया, मुझे बिजी मिला, बिल मिला, ये पॉइंट के ऊपर फ्री हो गया। ओके, फ्री होने के बाद में it waited for some amount of time, the station will wait for some amount of time, और वेट करने के बाद में वापस से फिर देखेगा। ओके, तो वापस से देखेंगे, अगर उसको मीडियम वापस से फ्री है तो मतलब अगर कभी फ्री है तो फिर वो अपना ट्रांसमिशन स्टार्ट करेगा, अगर मीडियम फ्री नहीं है तो फिर थोड़ा वेट करेगा। ओके, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ सकती है, जो सिचुएशन हम लोग ने अभी देखा है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। इसके लिए मीडियम को कंटिन्यूसली सेंस करने के बाद में जैसे ही फ्री मिलेगा वैसे ही जाके टूट नहीं पड़ेगा। ओके, इट विल अगेन वेट फॉर some amount of time as we have waited in the zero persistent. So I said this is the combination of 1 and 0. Just for the precaution, it just combine both the persistent method, that is 1 and 0, दोनों को combine करके उसने p persistent एक बताया। Okay, so we have this persistent method which works in the CSMA in order to avoid the collision. Okay, so that we can share. Okay, so we can have the shared medium. We can have the shared medium for multiple stations, and they can do the transmission. They can do the transmission in the shared medium. Okay, so I hope this is clear to all. Now हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे आते हैं, वो तो मैं आपको सीएससी में तो मैंने बता ही चुका हूँ, बट थोड़ा सा इसको हम लेके चलते हैं। Okay, first of all, the CSMA is to minimize the chance of collision, as we have seen in the Aloha and in the pure Aloha and in the slotted Aloha. We have seen there are a lot of a number of collisions was more. Okay, so we saw more collisions in that particular protocol. So we came with this CSMA, that is carrier sense multiple access. Okay, as you can see, to increase the performance, the CSMA method was developed. The chance of collision can be reduced if the station senses the medium before trying to use it. Okay, the concept is in front of you only, that you have a medium. The station has to sense the medium first. If the medium is idle, then only you will start the transmission. If the medium is busy, then will wait until the station become free. Okay, carrier sense multiple access, that is CSMA, रिक्वायर्स दैट, मैं इसका नाम बार बार ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में भी घुस जाए। CSMA बिल्कुल ये आप लोग को 7th सेमेस्टर में भी है, ठीक है। अभी जो हम लोग का फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है MCC, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन, तो उसके अंदर भी ये है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको वाइड नेटवर्क पे मतलब
पूरा समझा रहा हूँ, वहाँ पर वायरलेस नेटवर्क में सब कुछ है, CSMA वगैरह है उसके प्रोटोकॉल से, तो ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी, इसलिए उसको ध्यान रखना। So carrier sense multiple access requires that each station first listen to the medium before sending. So the thing is same, statement is same, थोड़ा सा modify करके statement है. In other words, CSMA is based on principle sense before transmit. Sense before transmit. तो transmit करने के पहले sense कर लो. और listen before talk. Okay, so this is the basic principle behind the CSMA. The possibility of collision still exists because of the propagation delay. Okay, so propagation delay is the time, propagation delay is the time where it takes from a frame which start from the source और destination तक जाने के लिए जो time लगता है, that is the propagation delay. Simple मैं आपको इसमें बता देता हूँ. This is for example A station, this is B. Okay, ए बी को कुछ डेटा सेंड कर रहा है, तो ए से बी तक जाने का और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, काइंडली कंसिडर इट. तो ए से बी तक जाने का जो रास्ता है वो अराउंड है आपका 2 मिनट का. ओके, दैट इज फॉर द 2 मिनट. सो जो प्रोपोगेशन डिले है फ्रॉम ए टू बी, ओके, तो ये हमारा 2 मिनट्स है. ओके, सो दिस इज द प्रोपोगेशन डिले. ओके, सो दिस अबाउट द CSMA. अब आते हैं हम लोग CSMA CD पर. ओके, क्योंकि CSMA तो मैं यही कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया, CSMA में वही कॉन्सेप्ट है. अब आते हैं एक्चुअली CSMA CD. द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वी कैन से, द नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट इन द CSMA दैट वी कैन डिटेक्ट द कोलिजन. अच्छा, अब यहाँ तुम लोगों ने बात की है कि भाई कोलिजन हो गया, ठीक है, कहाँ था वो, हाँ यहाँ पर. So we just came to know that somewhere in the somewhere in the middle of this medium, okay, collision were happening. Okay, collision happens at this point. Okay, but collision हुआ तो हमारे कैसे उसका डिटेक्शन कैसे होना चाहिए. Okay, हमारे A और C, because A and C are the parties who are involved in the communication. Okay, so how my A and C will come to know about the collision. Okay, तो मेरे ए और सी को पता कैसे चलेगा कि कोलिजन हो रहा है, तो उसके लिए एक उसका वेरिएशन है जिसका नाम है CSMA CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन. ओके, तो आई होप यहाँ तक CSMA तक समझा हो. CSMA तो वेरी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई भी मतलब वो नहीं है. इट यूजेस द परसिस्टेंट मेथड. परसिस्टेंट मेथड के अंदर 3 परसिस्टेंट मेथड, 1, 0 एंड P. These are 3 persistent method which was in the different. Okay. Moving ahead with the CSMA CD, that is collision detection. So we have this diagram, amazing diagram. With the help of this diagram, we'll try to understand how the collision is being detected. So CSMA method does not specify the procedure following a collision. So your CSMA will only आपको एक थोड़ा सा वो कर रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है. ओके, दैट भाई पहले सेंस कर लो, उसके बाद में सेंड करो, ट्रांसमिट करो एंड सो ऑन. ओके, but will not show you, it will not detect the collision. So carrier sense multiple access with collision detection, we have this variation augment the algorithm to handle the collision. Okay, and in this method a station monitors the medium after it sends the frame. तो अब इसके अंदर बेसिकली थीम क्या है, the station is going to monitor the frame. Okay, the station is going to monitor the frame, whatever the frame it is sending. Okay, अगर वो ट्रांसमिशन, अगर वो फ्रेम सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो जाता है देन इट इज़ ओके. अगर वो नहीं होता है देन वी विल कम टू नो दैट भाई ये आपका जो कोलिजन है वो हो रहा है, कोलिजन डिटेक्शन हो रहा है. ओके, इफ सो द स्टेशन इज फिनिश. इफ हाउएवर देयर इज अ कोलिजन द फ्रेम इज सेंट अगेन. तो फ्रेम को तो सेंड करना ही पड़ेगा अगर कोलिजन होता है, बिकॉज ये हम लोग जो टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, जो मेथड्स पढ़ रहे हैं, इनमें आपको 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं मिलेगी. ओके, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ कोलिजन तो हो ही जाएगा. ओके, इफ यू आर सेंडिंग लॉट ऑफ फ्रेम्स, ओके, आप 100 फ्रेम भेज रहे हो, 50 फ्रेम भेज रहे हो, तो हो सकता है 1, 2, 4, 5 में तो कम से कम कोलिजन हो ही जाए. ओके, जरूरी नहीं कि आपका पूरे के सारे फ्रेम्स सक्सेसफुली निकल रहे हैं. ओके, so for that just try to understand this diagram. Okay, so you can see the collision which is occurring at this point. So let us imagine that we are having 4 station A, B, C, D. Okay, हम लोग ने इन्वॉल्व कर लिया, हालांकि काम नहीं है, B और D का तो काम ही नहीं है, but we have just considered just to show the concept. So we have this A and C. Okay, and this is the medium. Okay, ये हमारा पूरा medium है.
अब एट द सेम टाइम व्हाट हैपन एट द टाइम t1. ओके, हम लोग ने टाइम अलग अलग कर लिया, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम. डायग्राम इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द डायग्राम कैसे क्या है. उसके बाद में जो रिमेन explanation है that you can write it own. I'm sure about it. Okay. So imagine we are having this four station. So just believe four station. We have only two stations, that is A and C, who are involved in the communication right now in this scenario. Okay. So your station A will start at the time T1. At the time T1, it will start. It will first sense the medium. You know, because according to the CSMA, what CSMA says, your CSMA says that first sense the medium. Okay. So whatever procedure is there, first sense करो medium को, फिर उसके बाद में देखो नहीं है तो फिर उसके बाद में transmission start करो and so on. So this is the procedure. Okay. So first T1 will follow the procedure. Okay. Sorry, your station A will follow the procedure of sensing the medium and then it will start the transmission at time t1. Okay, ये भाई साहब ने स्टार्ट किया. अब ये भाई साहब का सफ़र शुरू हो गया. ठीक है, इनके जो बिट्स है, इनका जो डेटा है, इनका जो सिग्नल्स है, अब इसको उन्होंने चैनल पे डाल दिए. ठीक है, अब उसी टाइम पे क्या हुआ, टाइम T2 पे, एट टाइम T2, मतलब आप टाइम T2 बोल रहा हूँ, मतलब तो उसके बाद का टाइम. तो उसके बाद में टाइम T2 पर क्या हुआ, आपके सी भाई साहब ने, आपका जो सी स्टेशन है, इट ऑल्सो सेंसेस द मीडियम. ओके, इट ऑल्सो सेंसेस द मीडियम एंड फाउंड दैट द चैनल इज स्टिल आइडल. चैनल अभी भी फ्री है, बिकॉज जो जो आपका जो मतलब ए का जो बिट्स है, ए के जो बिट्स अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं है. ओके, अभी उसने सेंस करके अपने बिट्स खाली डाला है. ठीक है, तो जब उसने बिट्स अपने डाला है तो यहाँ पर तो सी को पता चलेगा नहीं. ओके, जब सी को नहीं पता चला एट टाइम T2, देन व्हाट सी विल डू, सी विल सेंस द मीडियम एंड फाउंड दैट द मीडियम इज फ्री. ओके, व्हेन इट फाउंड द मीडियम इज फ्री, देन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, स्टार्ट द transmission, take the opportunity. तो C will start the transmission. Okay, as you know in the ethernet हमारे लैन में क्या होता है, हमारा जो सिग्नल है वो हर जगह जाता है. ठीक है, तो इट विल स्टार्ट द ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, तो ये आपका सिग्नल इधर भी गया, ये आपका सिग्नल इधर भी गया, ये मतलब दोनों वे में दिखाया सिग्नल. ओके, तो ये जो ब्लू कलर में सिग्नल है वो आपके सी स्टेशन का सिग्नल प्रोपेगेट हो रहा है. ओके, अब जब इसने सेंड कर दिया है तो क्या होगा, अब ये भाई साहब ए चलते, अच्छा मीडियम ए किया, मीडियम ए की है, अब चलते चलते यहाँ तक पहुँचे और हमारे सी भाई साहब का सिग्नल ये पहुँचते चलते यहाँ पर आ गए. ठीक है, so what will happen at this point the collision will occur. At this point the collision will occur. Okay, अब यहाँ पे collision हो गया है, टक्कर तो हो गई है, बट आपके ए और सी को अभी तक कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ है. ए और सी को अभी तक कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन द लैन, जब भी जो दो सिग्नल आते हैं और जब अगर कभी कोलाइड होते हैं तो कोलाइड होने के बाद में सिग्नल मिक्सिंग होके आपके जो सिग्नल है वो दोनों सिग्नल ए का और सी का सिग्नल, दोनों सिग्नल मिक्सअप होके कुछ तो ऊपर नीचे मिक्सअप होगा और ये सिग्नल यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी चला जाएगा. ठीक है, सो अब आपको क्या होगा, ये होने के बाद में दिस पॉइंट पे यहाँ पर तो कोलिजन हो गया, लेकिन पता बाद में चलेगा. ओके, तो अब यहाँ पर ए का जो कोलिजन हुआ है, अभी ए को, या फॉर एग्जांपल देखिए आपका ए का स्टेशन का जो साइड है वो इस साइड है. ओके, तो ये जब बिट्स यहाँ पर पहुँचेंगे तब जाकर हमको पता चलेगा, ये जो आपके जो सी के बिट्स है वो ट्रैवल, अच्छा यहाँ पर आपका सिग्नल मिक्सिंग हो गई, तो सिग्नल मिक्सिंग देखो ऐसी हो गई, अब इस सिग्नल मिक्सिंग हो के जा रही है आपको. ठीक है, अभी भी अपना ए और सी समझ रहे हैं कि भाई साहब मस्त में हम लोग ने डेटा ट्रांसमिट कर दी, बट एक्चुअली क्या हो गया है, कोलिजन हो चुका है. बट हाउ योर स्टेशन विल कम टू नो अबाउट द कोलिजन डिटेक्शन. ठीक है, तो ये सिग्नल मिक्सिंग हो गई है, जा रहा है और जाके जब यहाँ पर पहुँचेगा एट टाइम T4. ओके, एट टाइम T4 तो पता चलेगा कि भाई कोलिजन हुआ है, और कोलिजन हुआ है तो फिर यहाँ पर ए अपना क्या करेंगे, नेसेसरी प्रिकॉशन. एक्सीडेंट होने के बाद में क्या करते हैं, उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं, गाड़ी साइड में लगाते हैं, तो ये सब ये सारा काम अपना करेंगे. और उसी टाइम पे आपका ये सिग्नल यहाँ पहुँचा और ये मिक्सिंग सिग्नल आपका यहाँ पर पहुँचेगा सी को. तो ये टाइम T3 पे, बिकॉज ये आपका जो डिस्टेंस है शॉर्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टाइम. ओके, ये जो टाइम है बहुत शॉर्ट है, तो एट टाइम T3 सी का मतलब जो ए का आपका जो सी को पता चल जाएगा, कोलिजन के बारे में सी को पहले पता चलेगा, बिकॉज टाइम वॉज वेरी शॉर्ट एट दिस पॉइंट.
अच्छा अगर कभी यहाँ पर होता कोलिजन तो पहले ए को पता चलता था, लेकिन यहाँ पर हुआ है कोलिजन, सो सी स्टेशन विल कम टू नो फर्स्ट अबाउट दिस कोलिजन. ओके, when C station will come to know about the collision, then it will take the necessary action about this. Okay, so at time t3 your C will come to know about this collision. Okay, so this is how we came to know about the collision. तो ये जस्ट एक डायग्राम के थ्रू इसका हम लोग समझ सकते हैं. अच्छा, ये होने के बाद में कोलिजन एक बार डिटेक्ट हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको, एनी हाउ यू हैव टू रिसेंड द पैकेट. ओके, देन उसके इसके बाद का प्रोसीजर आपको पैकेट रिसेंड करना. ओके, so this mixing signal will reaches at this point of time, that is at the time t4. so t3 टाइम पे ये इसको पता चल गया C को, बिकॉज C यहाँ पर है इसलिए C को पता चल गया, और ये सिग्नल यहाँ पर पहुंचा तो A को थोड़ा बाद में पता चला at time t4. ओके, so collectively we can see that the transmission time for A signal is अब यहाँ पे t4 मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है, just try to understand, ये जो इतना जो पूरा डिस्टेंस है वो आपका है t4. सो t4 माइनस आप बोलो t4 माइनस t1. ओके, द ट्रांसमिशन टाइम फॉर ए सिग्नल इज t4 माइनस t1. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. t4 सिग्नल में से t1 सिग्नल को, सॉरी टाइम को माइनस कर, मैं सिग्नल बोल रहा हूँ, सॉरी. सो t4 टाइम में से t1 टाइम को माइनस कर दो, तो जितना टाइम बचता है वो ट्रांसमिशन टाइम है आपके ए सिग्नल का. और उसी तरीके से यहाँ पर आपका एट टाइम t2 यूर द सी सिग्नल वॉज स्टार्टेड एंड पता चला तो फिर भाई साहब आगे वापस t3 पे पता चल गया तो भाई साहब ने अबॉर्ट कर लिए, तो अब फिर ये जो हो गया वो t3 माइनस t2 हो गया. सो द ट्रांसमिशन टाइम फॉर सी सिग्नल इज t3 माइनस t2. ओके, सो दिस इज द बेसिकली द ट्रांसमिशन टाइम. ओके, कुछ नहीं इसके अंदर, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें है नहीं, बस with the help of diagram we have to present that the collision is being done in this case, and this is how the collision is being detected. How the collision is detected at their respective nodes. Okay, तो हमको collision यहाँ पे डिटेक्शन हुआ, ठीक है, C को मतलब C collision डिटेक्शन, तो C को यहाँ पे पता चला और A को यहाँ पे पता चला. ओके, सो ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं. अलग अलग बुक वालों ने अलग अलग डायग्राम प्रेजेंट किए हैं, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसके अलग डायग्राम, एक सिंपल उससे डायग्राम से उसको प्रेजेंट किया है. जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये आपका शेयर्ड मीडियम, अभी कहाँ जा रहा है शेयर्ड मीडियम, एक सेकेंड मैं आपको बता दूँगा. सो उन्होंने डायग्राम कैसे शो किया है, दिस इज द शेयर्ड मीडियम. ओके, और यहाँ पर आपका एक नोड है, यहाँ पे एक सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका एक सिस्टम कनेक्टेड है, यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है. तो ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड लाइक ऐसा. तो ऐसा बताने की बजाय आप ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है. तो आपका यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है आपका ए, ठीक है, और ये आपका है बी. ओके, ये है सी, ये है डी और ये है ई. तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपका ए और ई का चल रहा है. फॉर एग्जांपल ए ने मीडियम सेंस किया, ये आपका शेयर्ड मीडियम है, ठीक है, ये आपका शेयर्ड मीडियम है. अब ये शेयर्ड मीडियम को ए ने सेंस किया तो ये पॉइंट के ऊपर उसने सेंस किया. ओके, एट दिस पॉइंट स्टेशन ए हैज सेंसेस द मीडियम एंड फाउंड द मीडियम इज फ्री, then what it will do, it will start the transmission, it will load their bits on this medium. यहाँ पे उसने लोड कर दिया. अभी ई वाले ने भी किया, ई वाला भी क्या करेगा, सेंस करेगा. ई विल ऑल्सो सेंस द मीडियम एंड फाउंड द मीडियम इज आइडल, दैट विल स्टार्ट ट्रांसमिशन. ओके, सो अभी भाई साहब ट्रांसमिशन कर रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहा है. ये पॉइंट के ऊपर क्या हुआ, ये भी ट्रांसमिशन हो रहा है, आ रहा है. अब यहाँ पर क्या हुआ, कोलिशन हो गया, इनका कोलिशन हो गया. तो ये एक डायग्राम है जिसकी वजह से मतलब जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके थ्रू भी बता सकते हैं. मैं आपको जस्ट डायग्राम बता रहा था, यू विल फाइंड द डायग्राम एवरीवेयर. So I found this diagram is okay because it is showing the transmission time also and it is showing the कहाँ पर collision हो रहा है और collision C को कब पता चला, A को कब पता चला, ये भी demonstrate कर रहा है. So I've shown this diagram. Okay, so this is regarding the collision detection. Okay, so ये पूरा एक्सप्लेनेशन है. एज यू कैन सी, एक बार आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको वही चीज़ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया. सो ऑल द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दिस डायग्राम मैं यहाँ पर लिखा हूँ. ओके, द नेक्स्ट इज CSMA CA विच इज वी विल नॉट स्टार्ट द CSMA. यहाँ पर हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते.
चलो ठीक है, तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है। आई होप दिस इज I hope you have understood these concept. Like started from the CSMA. Okay, we have seen the persistent method, and after this persistent method, we come to the CSMA CD, that is collision detection, and in collision detection, we understand this diagram. Okay, में कोई डाउट, कोई कुछ रिपीट करना है, एक्सप्लेन करना है वापस से, प्लीज लेट मी नो. ओके, सो द थिंग्स आर वेरी क्लियर एज यू कैन सी. ये क्वेश्चन एग्जाम में सी एस एम ए सी डी का, देखो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में दोनों मतलब कॉम्बिनेशन वाइज भी आ सकते हैं कि कैसे कॉम्बिनेशन वाइज. वी कैन हैव लाइक सी एस एम ए को अलग से उसने पूछा, या फिर सी एस एम ए सी डी को पूछा, या सी एस एम ए सी ए को, या फिर सी एस एम ए सी डी सी एस एम ए सी ए दोनों को साथ में पूछा. तो ऐसे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आ सकते हैं. जस्ट थोड़ा सा टाइम निकाल के हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं वेदर द क्वेश्चन कहाँ पर है, मैंने रखा हूँ. क्वेश्चन पेपर मैंने ऐड किया था उसमें, कहाँ भाग गए. ओके चलो कोई बात नहीं, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पेपर निकाल के रखा था एक्चुअली, वही देख रहा था क्वेश्चन पेपर कहाँ चले गए. That is we can see the question is asked in examination for the, from this topic. Okay, not an issue. So again I'm asking, I hope these topics are clear to you. From next lecture, we will start with CSMA CA, that is collision avoidance. Okay, regarding collision avoidance. Regarding this collision avoidance, we have three different strategies. The first is interframe space, the second is contention window, and the third is acknowledgement. So we have these three methods, these three techniques, these three strategies from which the collision can be avoided. Okay, so we'll learn about that interframe space, the contention window, and the acknowledgement. Okay. Thank you so much. Omkar, someone please stop the recording. I'm coming, actually.